Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah, doing good and will be safe. Today we will start from the very first chapter of this book and it is of class 10th English. Before going to our lesson, I will explain in simple words. In this lesson we are told about the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is also told that how he played a key role in the state of Medina and did justice without the difference of caste, color, creed and race. Okay students, now we will start from the very first lesson of this book. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Embodiment mean मुजस्मा, अमली मुजस्मा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो इंसाफ का एक अमली मुजस्मा थी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through the practical example for all mankind to follow in every field of life. Okay students, now we will move to explanation. I will explain in Urdu. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model. Perfect model mean कामिल नमूना है and example और एक मिसाल है for the people, उन लोगों के लिए who want to attain. Attain mean हासिल करना चाहते हैं, goodness अच्छाई, piety तकवा, success कामयाबी, in the individual इंफरादी as well as social life. Social life means समाजी, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक कामिल नमूना है जो अपनी इंफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, पाकीज़गी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस. सीक लाइट मतलब रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, रोशनी हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई ले सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन. अचीव मीन हासिल करने के लिए, परफेक्शन कमाल यानी अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, इन द मोरल इखलाकी तौर पे, स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के समाजी पहलुओं में. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबों में कमाल हासिल कर सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और रहनुमाई से. He has set very high and noble ideals through the practical example for all mankind to follow in every field of life. He has set very high and noble ideals, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक मिसाल कायम कर दी, एक आला मिसाल कायम की तमाम इंसानियत के लिए. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबे ज़िंदगी में इंसानियत की पैरवी के लिए अपने अमली नमूने से एक आला और शानदार मयार कायम फरमाया. ओके स्टूडेंट्स, होप यू गॉट इट. यानी इस पैराग्राफ में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि कैसे हम उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करके अपनी ज़िंदगी में एक परफेक्शन अचीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू पैराग्राफ नंबर 2. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल देन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह अलमाइटी. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Okay students, let's start reading of paragraph number 2. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah Almighty.
As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair, and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Now we will move to explanation. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड मतलब अमली तौर पर साबित कर दिया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल मीन इंसाफ पसंद, जस्ट रास्त गो, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमली तौर पर साबित कर दिया कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रास्तगो और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान कारोबारी आदमी होने की हैसियत से, ताजिर होने की हैसियत से, ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदार, रास्तगो और इंसाफ पसंद कारोबारी इंसान के तौर पर अच्छी शोहरत पाई। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल। फेयर एंड जस्ट मीन्स इंसाफ पसंद मामलात, दुरुस्त या ऐसे मामलात जो सिर्फ इंसाफ पर मबनी हो। डीलिंग्स मामलात विद ऑल पीपल, तमाम लोगों से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम लोगों के साथ दुरुस्त और इंसाफ पर मबनी मामलात रखे। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा की तामीर हो रही थी, देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, यानी कंस्ट्रक्टेड मतलब तामीर हो रही थी या काबा तामीर किया जा रहा था। इट इज पैसिव वॉइस। देयर अरोज अ डिस्प्यूट, वहां झगड़ा उठ खड़ा हुआ, अमंग द पीपल, लोगों में, रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद के बारे में, यानी काबा की जब तामीर हो रही थी तो लोगों में हजरे अस्वद को नस्ब करने के बारे में एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ही एडवाइज्ड मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को नस्ब करने के लिए सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद फैसला तजवीज़ फरमाया, यानी एक ऐसा फैसला जो सिर्फ इंसाफ पर मबनी था। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट मीन कबायली तजाद, ट्राइबल कबायली कन्फ्लिक्ट तजाद, यानी इसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली तजाद से बचा लिया। नाउ वी विल सम अप दिस पैराग्राफ। In this paragraph, we are told about an occasion when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam proved that no one could be more just than him. We have a question in the box. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला कैसे हल फरमाया? The answer will be he advised the most equitable plan for the setting of the black stone, and this pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Okay student, let's move with paragraph number 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anha to intercede on her behalf. Hazrat Usama radhiyallahu ta'ala anhu requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. Now we will move to translation. As head of the state of Medina, यानी मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से, ही डिसाइडेड, आपने फैसले फरमाए, ऑल केसेस, तमाम मुकदमात के, ऑन मेरिट, खूबी की बुनियाद पर, विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और अदल की बुनियाद पर, इर्रिस्पेक्टिव मीन बगैर फ़र्क किए, ऑफ कलर, रंग का, क्रीड और रेस या नस्ल का, यानी मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फैसले रंग, मज़हब या नस्ल में फ़र्क किए बगैर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फरमाए। वंस अ कुरैश वीमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक दफ़ा एक कुरैश की औरत चोरी की मुजरिम पाई गई। स्टीलिंग मीन चोरी की, गिल्टी मुजरिम। सम पीपल वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट, कुछ लोग उसको सजा से बचाना चाहते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, यानी ऑनर मीन इज्जत, वकार, प्रोटेक्ट बचाने के लिए, यानी
कुछ लोग खानदान कुरैश की इज्जत बचाने के लिए उसे सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हजरत उसामा बिन जैद टू इंटरसीड, यानी उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से दरख्वास्त की, यानी सिफारिश की दरख्वास्त की, ऑन हर बिहाफ, उसकी तरफ से, यानी कुरैश के कुछ लोग उसको कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए सज़ा से बचाना चाहते थे और उन्होंने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए दरख्वास्त की। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की टू फॉरगिव हर, कि उसको माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सैड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गुस्से में जवाब दिया, बनी इसराइल वाज रून्ड बिकॉज ऑफ दिस, यानी बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गए। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, यानी वो गरीबों पर कानून लागू करते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे। नाउ वी विल सम अप दिस पैराग्राफ, मीन्स पैराग्राफ नंबर 3. In this paragraph, we are told about a woman belong to Quraysh, that how people wanted to save her from punishment, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not listen any favor. And we have a question in the box. Why did Quraysh think that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? यानी कुरैश का ख्याल ये क्यों था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर देंगे? तो we can answer in Okay students, we can see that we have a question in the side box. Why did Quraysh think that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? यानी कुरैश का ये ख्याल क्यों था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी करेंगे? We can answer because the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was himself from Quraysh. That is why they asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी कुरैश के ख़ानदान से था, इसलिए उन लोगों का ख्याल था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की इज़्ज़त को बचाने के लिए उसको माफ़ कर देंगे। Now we will start paragraph number 4. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. The Rasul sallallahu alaihi wasallam replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. During the sermon means khutbah, यानी एक खुतबे के दौरान, एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु तलबा, बनु तलबा एक कबीले का नाम है, जैसे कि कबीला कुरैश है, इसी तरह ये भी एक ट्राइब है, एक कबीला है बनु तलबा। सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड, यानी एक खुतबे के दौरान एक अंसारी कबीला बनु तलबा के चंद आदमियों को वहां बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ उसने इशारा किया और कहा, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के पैगंबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर एंसेस्टर्स, इनके अबावजदाद, एंसेस्टर मीन्स अबावजदाद, बाप दादा, किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी इनके अबावजदाद ने हमारे खानदान का एक फर्द कत्ल कर दिया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, यानी अपील टू यू मतलब आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपील मीन दरख्वास्त करते हैं, यानी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हैंग्ड मीन फांसी लगवा दें, एक्सचेंज बदले में, यानी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी लगा दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, रिवेंज मीन बदला, इंतकाम, ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। Okay students, let's start reading of paragraph number 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge iniquity between them, for Allah loves those who judge iniquity. I will explain it for you. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known. Well known means famous, मशहूर होना. For his justice, अपने इंसाफ की वजह से, that even the Jews, हत्ता के यहूदी, who were his bitter enemies, bitter mean बदतरीन enemies, दुश्मन, यानी यहूदी
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सूट्स मीन मुकदमात, ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, ज्यूइश लॉ यहूदियों के कानून के मुताबिक, यानी यहूदी कानून के मुताबिक, यानी यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे वो भी अपने फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके दरमियान फैसला फरमाते थे। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड मीन सख्ती से पैरवी की, द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के इस हुक्म की, कमांडमेंट मीन हुक्म। इफ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, इधर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला करें, और डिक्लाइन या इनकार कर दें, डिक्लाइन मीन रिफ्यूज, टू इंटरफेयर मुदाखलत करने से, यानी अगर वो आपके पास आए तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें या फिर उनके दरमियान मुदाखलत करने से इनकार कर दें। इफ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, तो वो आपको जरा भर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ यू जज, अगर आप फैसला करते हैं, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें। फॉर अल्लाह लव्स दोज, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है, हु जज इन इक्विटी, जो इंसाफ से फैसला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सम अप दिस पैराग्राफ फॉर यू। In this paragraph we are told about the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he was just to non-Muslim, he followed the commandment of Allah, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों से इंसाफ करते थे बल्कि वो जो गैर मुस्लिम लोग थे उनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मुसलमानों के लिए था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, सी वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों एतबार करते थे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द नॉन मुस्लिम्स, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से इस कदर मशहूर थे कि जो गैर मुस्लिम लोग थे, हु वर हिज बिटर एनिमीज, यानी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, यानी जो यहूदी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और इंसाफ की वजह से अपने तमाम फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फैसले उन्हीं के मजहब के मुताबिक फरमाते। लेट्स पैराग्राफ नंबर 6। जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशंस। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affair with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anha that Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said to him, when two men come to you for judgment, never decided in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha reported Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. Okay, let's start explanation in Urdu. Justice demands mean taqaza. जस्टिस डिमांड्स यानी इंसाफ का तकाजा है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल द सर्कमस्टांसेस मीन हालात, यानी इंसाफ का तकाजा है कि इसको या इसकी बालादस्ती को तमाम हालात में कायम रखा जाए, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, हत्ता कि ये किसी अपने के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो, और वंस फैमिली और रिलेशंस, अपने खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affair with justice and told his companions means साथी, to be just, यानी सहाबा इकराम, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों के मामलात इंसाफ से तय फरमाए और अपने सहाबा को भी यानी अपने असहाब को भी इंसाफ की तलकीन फरमाई। इट इज रिपोर्टेड बाय हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रिपोर्टेड मीन रवायत है, दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व्हेन टू मैन कम टू यू, अगर दो आदमी तुम्हारे पास आए फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए या फैसले के लिए, नेवर डिसाइडेड इन फेवर, फेवर मीन तरफदारी, यानी कभी भी किसी की तरफदारी में फैसला ना करो, ऑफ वन,
किसी एक की, यानी किसी एक की तरफदारी में फैसला मत करो। विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, आर्गूमेंट्स मीन दलाइल, दूसरे के दलाइल सुने बगैर। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए, इंसाफ के लिए आए, तो कभी भी किसी एक के हक में फैसला ना करो दूसरे के दलाइल सुने बगैर। इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम सच्चाई जान लोगे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग के अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, एनी रूलर और जज, यानी कोई भी हुक्मरान या कोई भी जज, हु क्लोजेज हिज डोर, जो अपना दरवाजा बंद करता है, ऑन द पुअर, गरीब लोगों पर, द नीडी और जरूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट और मुफलिसों पर। अल्लाह क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह भी उस पर दरवाजा बंद कर देता है, ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, यानी जो कोई गरीब पर, मुफलिस पर, जरूरतमंद पर अपना दरवाजा बंद कर देता है, तो अल्लाह ताला भी उस पर अपना दरवाजा बंद कर देता है जब उसको जरूरत पड़ती है, यानी जब वो जरूरतमंद या मुफलिस होता है। द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिसाइडेड एनी केस इन फेवर ऑफ वन पर्सन ड्यू टू द कास्ट और रिलीजन। ही आल्सो टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी की तरफदारी नहीं की या किसी के खौफ से फैसला नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनजर रखकर इंसाफ के मुताबिक फैसला किया। वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली, यानी हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत की। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give advice to Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, when two men come to you for judgment, यानी दो आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए, never decided in favor of one without hearing the arguments of the other, यानी कभी भी किसी एक की तरफदारी। Okay students, you can see that we have a question in the side box. What advice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam give to Hazrat Ali, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को क्या नसीहत की। The answer will be the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave advice to Hazrat Ali radiallahu ta'ala anha, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये नसीहत की कि कभी भी दो बंदे अगर तुम्हारे पास आते हैं किसी भी मुकदमे का फैसला लेके, तो कभी भी एक के दलाइल सुने बगैर दूसरे के हक में फैसला ना करो। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here. He may take revenge on me in this world. There was a complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. Okay, let's start explanation of this paragraph. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed बिस्तर मर्ग मीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के करीब थे. He proclaimed mean to announce publicly, यानी ऐलान करना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया, इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन, अगर मैंने किसी का कुछ देना हो, और इफ़ आई रोंग्ड एनी पर्सन, या मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती की हो, और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी, डैमेज्ड मीन नुकसान पहुंचाया हो, एनीवन्स प्रॉपर्टी किसी की जायदाद को, और ऑनर किसी के वकार या किसी की इज्जत को. यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वसाल के करीब थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि अगर मैंने किसी का कुछ देना हो, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की हो, या किसी की जायदाद या इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, माई पर्सन मेरी ज़ात, माई ऑनर मेरी इज्जत, एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, और मेरी जायदाद यहाँ मौजूद हैं. ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, तो वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है. देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, वहाँ मुकम्मल खामोशी थी. ओनली one person demanded a few dirhams which were paid to him. डिमांडेड मीन मुतालबा किया,
दिरम्स विच वर पेड मतलब अदा कर दिए गए। सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरम का मुतालबा किया जो उसको उसी वक्त अदा कर दिए गए। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन, यानी प्रोक्लेम्ड लफ्ज का क्या मतलब है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड पब्लिकली और ऑफिशियली, मतलब अवामी तौर पर किसी भी बात को, किसी बात का ऐलान करना या खुल्लम खुल्ला उसको बयान करना। So let's start reading of paragraph number 8. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barrier of his time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions these aspects of his life. Indeed, in the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Let's start translation. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him. यानी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से साबित फरमाया कि इंसाफ के मामले में कोई उनसे ज़्यादा पुख्ता अज़म नहीं हो सकता। इवन इफ़ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन मफाद। इंटरेस्ट का मतलब वैसे दिलचस्पी होता है, लेकिन यहाँ हम इसको एज अ मफाद यूज़ करेंगे। और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या किस उन लोगों के मुफाद के खिलाफ, हु वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल से ये साबित फरमाया कि इंसाफ के मामले में कोई उनसे ज़्यादा पुख्ता अज़म नहीं हो सकता, ख्वाह ये आपके किसी करीबी और अजीज़ दोस्त या अजीज़ रिश्तेदार के मुफाद के खिलाफ क्यों ना हो। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया हर मुकदमा जिसका आपने फैसला फरमाया, बाय फ्रेंड और फो, चाहे वो किसी दुश्मन का होता या दोस्त का होता, विद जस्टिस, आप इंसाफ से फैसला फरमाते, विदाउट फियर और फेवर, बगैर खौफ या तरफदारी के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास लाए गए अपने दोस्त या दुश्मन के मुकदमे का फैसला बगैर किसी तरफदारी या खौफ के फरमाते थे। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड्स मीन इस किस्म की खूबियों का हामिल शख्स, ट्रांसेंड्स बुलंद तरीन है, द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, बैरियर्स मीन रुकावटें, ऑफ टाइम एंड स्पेस ज़मा व मकान यानी वक्त और जगह, यानी इस कदर आला किरदार की मालिक हस्ती वक्त और जगह की रुकावटों से बुलंद है। ट्रांसेंड्स मीन बुलंद है। People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. हर ज़माने के लोग यानी हर किस्म के लोग, हर उम्र के अफराद अपनी सरगर्मियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हर पहलू पर वाज़िया तौर पर रहनुमाई ले सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मैंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू बड़े वाज़िया तौर पर बयान किया। Indeed, in the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day. यानी कुरान मजीद में क्या बयान किया गया कि यकीनन तुम्हारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना मौजूद है जिस पर आप अमल कर सकते हैं। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर उम्मीद रखता है, एंड रिमेंबर अल्लाह मच, और अल्लाह ताला को कसरत से याद रखता है। Now we will sum up this topic, this chapter, and we have to discuss the theme of this chapter. The theme of this chapter is that Allah's Messenger is a great example to all of mankind. Many incidents in this lesson prove the justice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Okay students, now we are going to close this chapter and we have to discuss the theme of this chapter. The theme of this chapter is that Allah's Messenger is a great example to all of mankind. Many incidents in this lesson prove the justice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam dealing with non-Muslim is the best example to follow for the Muslims.
I hope you understood this lesson very well and learned a lot about the justice of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay students, as we have already discussed the chapter in detail, we have discussed in English as well Urdu. I hope question answer will be easy for you after reading the chapter, and we have total 5 unit related questions, and one by one we will explain it and discuss them. Unit related question answers. How did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the issue? यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झगड़ा जो काबा की तामीर के दौरान उठ खड़ा हुआ था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हल किया? He advised the most equitable plan for the setting of the black stone which pleased everyone and saved them from a tribal conflict. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई इंसाफ पसंद मशवरा दिया, एक इंतहाई इंसाफ पसंद फैसला तजवीज़ फरमाया जिसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली तजाद से बचाया. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द कुरैश थिंक दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम? यानी कुरैश का यह ख्याल क्यों था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी करेंगे? द आंसर इज बिकॉज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिमसेल्फ फ्रॉम कुरैश, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी खानदानी कुरैश से था. That is why they asked हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा to intercede on her behalf. और यही वजह थी कि उन लोगों ने हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस औरत की तरफ से सिफारिश करें. They thought that हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would not punish her to save the honor of the family of the Quraysh. यानी कि उन्होंने ये सोचा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान की इज्जत को बचाने के लिए उस औरत को सजा नहीं देंगे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो गैर मुस्लिम लोग थे अरब के, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों एतबार करते थे, क्यों भरोसा करते थे? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that non-Muslims brought their suits to him and he decided their cases in accordance with the Jewish law. यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आते थे अपने मुकदमात लेके क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी कानून था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकदमात उन्हीं के कानून के मुताबिक तय फरमाते थे. So we have to move on the next page. Question number 4. What advice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam give to हजरत अली? यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कौन सी नसीहत दी? तो गिव एडवाइस. अब एडवाइस जो है CE इट्स मीन नसीहत, तो जब हम गिव साथ लगाएंगे तो गिव एडवाइस मीन नसीहत की. तो आंसर में हम लोग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एडवाइस, और जब कभी भी हम लोग कोई एडवाइस जिसमें एस आ रहा हो जब यूज करते हैं तो हम साथ गिव या गेव नहीं लगा सकते. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एडवाइस टू हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व्हेन टू men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये नसीहत की कि जब कोई दो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट एडवाइस डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव टू हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एडवाइस टू हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व्हेन टू men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो आदमी तुम्हारे पास कोई फैसला लेके आते हैं तो किसी एक के दलाइल सुने बगैर दूसरे के हक में फैसला ना कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सच्चाई जान लोगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन? यानी लफ्ज प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब है? द वर्ड प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड पब्लिकली और ऑफिशियली, यानी किसी भी बात को खुल्लम खुल्ला बयान करना, अवामी सतह पर बयान करना या सबके सामने बयान करना, प्रचार करना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न ऑफ comprehension question answers which are included in your exercise of textbook. So let's start with question number 1. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? यानी लोग अपनी अखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कैसे परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, कमाल हासिल कर सकते हैं.
People can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life in the light of the message and guidance from the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करके लोग अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, यानी कमाल हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इंसानियत के लिए एक आला मिसाल कायम की। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन द एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से, हर अमली पहलू से ये साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैरवी के लिए एक कामिल नमूना है। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, How are people of Makkah convinced of the Prophet's sallallahu alaihi wasallam justice even before his prophethood, यानी नबूवत से पहले मक्का के लोग किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल थे। They convinced of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam justice even before his prophethood, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी। As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से हमेशा इंसाफ पसंद मामलात फरमाते थे। During the construction of Kaaba, he advised the most equitable plan. Due to these qualities, they were convinced the justice of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई इंसाफ पसंद मामला उस वक्त फरमाया जब काबा की तामीर हो रही थी। तो यही खूबियाँ थी जिनकी बिना पर अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, यानी मदीना रियासत के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस्म के इंसाफ का तकाजा किया, किस किस्म का इंसाफ किया। As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और race, यानी एक मदीना रियासत के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम फैसले बगैर किसी फ़र्क के किए, मतलब सिर्फ उसका जो मेरिट था वो इंसाफ था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं देखा कि किसकी क्या ज़ात है, क्या रंग है या कोई किस किस्म की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो अरब के नॉन मुस्लिम थे यानी कफ़ार थे वो क्यों लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात। नॉन मुस्लिम्स ब्रॉट देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ही डिसाइडेड देयर केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, यानी जो गैर मुस्लिम थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो मुकदमात थे वो यहूदी कानून के मुताबिक तय फरमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान करीम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान किया। The Holy Quran clearly mentions the aspect of his life. We have indeed in the messenger of God a good example for anyone whose hope is in God and the final day, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ने यूँ बयान किया कि हमारे पास एक अल्लाह ताला का एक ऐसा पैगंबर है, एक ऐसा कासिद है जो दूसरों के लिए अमली नमूना है, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो रहनुमाई के लिए एक कामिल नमूना है। Okay students, I hope this wording is very comprehensive for you and you learnt a lot. Thanks. Okay students, now we have last question and it is question number 6. How does the Quran describes the personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, यानी कुरान करीम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान किया। The Holy Quran clearly mentions the aspect of his life. We have indeed in the messenger of God a good example for anyone whose hope is in God and the final day, यानी कुरान करीम में बयान किया गया कि अल्लाह ताला का पैगंबर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई के लिए एक कामिल नमूना है, एक अच्छी मिसाल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वर्डिंग इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव फॉर यू एंड यू लर्नड अ लॉट। थैंक्स।